Hello, welcome everyone. Let's start with the class 10 mathematics part 1, chapter number 1, linear equation with two variable. Today we continue with the practice set 1.3. Practice set 1.3, it's about Cramer's rule. Cramer's rule. I recall you once again. What is the Cramer's rule? In linear equation with two variable, two equation it's given, so we have to write the equation in this form: a1 x plus b1 y is equal to c1. Always we have to write the equation into this form, and a2 x plus b2 y is equal to c2. When we write the equation in this form, okay, we will get a1 a2. So here we write a1 is equal to a2 is equal to, we write b1 is equal to b2 is equal to c1 is equal to, and c2 is equal to. Okay, this represent the value of x variable, this represent the value of y variable. The equation हमको d की वैल्यू फाइंड करनी है. वी हैव टू d फॉर डिटर्मिनेट्स. डिटर्मिनेट्स की वैल्यू फाइंड करने के लिए अंडर द बार वी हैव टू राइट a1 a2 b1 b2, then cross multiply and we have to find the value of d. Second step is dx. dx means x is there, तो x को एलिमिनेट करना है. x को एलिमिनेट करना है, क्या लिखेंगे? c1 c2 b1 b2. नेक्स्ट वन dy इज देयर, तो हम y को एलिमिनेट कर देंगे. y वेरिएबल्स को नहीं लिखेंगे, तो क्या लिखेंगे? a1 a2 and here c1 c2, cross multiply. So we will get the value of determinants, determinant x, determinants y. Then we have to find the value of x variable. To find the value of x variable हम dx upon d लिखेंगे. Then we reduce them to a lowest term, तो we will get the value of d. dy फाइंड करने के लिए dy upon d लिखेंगे, तो हमको y की वैल्यू मिल जाएगी. इस तरह से हमें x और y वेरिएबल, x और y की वेरिएबल मिल जाएंगे. लेट्स स्टार्ट विद द क्वेश्चन नंबर 3, प्रैक्टिस सेट 1.3 इन आ महाराष्ट्र टेक्स्ट बुक, पेज नंबर 16. थर्ड क्वेश्चन आई एम राइटिंग x plus 2y is equal to -1. Question is given in this form. Next equation it's given, so 2x minus 3y is equal to 12. This is the second equation. हम क्या करेंगे? इक्वेशन बराबर से ही दिया है, x plus 2y is equal to -1. ये हमारे जो ऑर्डर चाहिए वही ऑर्डर में दिया है. 2x minus 3y is equal to 12. Is it given in the proper order? No need to arrange them. तो I'll give a equation 1 and 2. उसके बाद हम क्या करेंगे? यहाँ पे लिख लेंगे a1 a2 b1 b2 c1 c2. यहाँ पे हम उसके नंबर्स लिख देंगे. what number this a1 and a2 carry? here nothing it's given, so assume it's by default 1 हो जाता है, तो यहाँ पे 1 and 2. b1 b2 we have to carry the sign, that number, that variable it has, so +2 and -3, and here it's -1 and 12, तो यहाँ पे -1 और 12 लिख देंगे. ये वैल्यू हो गई. इससे हम डिटर्मिनेट्स फाइंड करेंगे. डिटर्मिनेट्स d की वैल्यू फाइंड करनी है. d की वैल्यू के लिए हम ब्रैकेट में लिखेंगे a1 a2 b1 b2, ये अंडर द बार लिखेंगे और उसको वैल्यू को चेक करते हैं व्हाट वी हैव रिटन. तो हमारी वैल्यू हो जाएगी, here 1 it's given, here 2 it's given, and here +2 it's given, and here 3 it's given. क्या करना है? डिटर्मिनेंट्स की वैल्यू फाइंड करने के लिए क्रॉस मल्टीप्लाई ऐसे ही जाएगा. एरो हमेशा ऐसे ही जाना चाहिए. इट्स नॉट लाइक दैट कि 3 into 1, तो 1 into 3 करेंगे, ब्रैकेट लिखेंगे, माइनस का साइन कर देंगे, एंड देन 2 into 2.
तो क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा, 2 2 4 हो जाएगा, 3 -4 -1 हो जाएगा, तो d इज इक्वल टू -1। dx फाइंड करना है, तो dx के लिए c1 c2 b1 b2, यहाँ पे x के वेरिएबल को एलिमिनेट करना है। c1 और c2 की वैल्यू है हमारी -1 एंड 12, b1 b2 की वैल्यू है 2 एंड -3। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो -1 इंटू -3, यहाँ पे माइनस का साइन हो जाएगा और इसको माइनस करेंगे 2 मल्टीप्लाई बाय 12, 3 1 3 प्लस 3 1 3 मल्टीप्लाई है तो प्लस हो जाएगा, -12 2 24 प्लस 3 -24 -21 हो जाएगा। dx इज इक्वल टू -21। देन वी फाइंड द वैल्यू ऑफ dy, दैट इज y को एलिमिनेट करना है, a1 a2 c1 c2, so a1 and a2 carries the number 1 and 2, c1 c2 carries the number -1 and 12, cross multiply 12 -1 into 2, 12 1 12 minus 2 1 -2, 12 प्लस 2 हो जाएगा 14, सो dy इज इक्वल टू 14 हो जाएगा। x वेरिएबल फाइंड करना है, x वेरिएबल इज इक्वल टू dx अपॉन d, dx हमको मिला है -21, d मिला है -1, -21 -1 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो फिर x इज इक्वल टू 21 हो जाएगा। y वेरिएबल फाइंड करना है, तो dy अपॉन d, तो ये 14 हो जाएगा और d की वैल्यू है -1, 14 -1 ऊपर चला जाएगा तो y इज इक्वल टू -14, तो y की वैल्यू हो जाएगी -14, x की हो जाएगी 21, सो x, y इज इक्वल टू 21 and 14, दिस इज द आंसर। Let's continue with the fourth question. Practice set 1.3. Practice set 1.3 solution 4, page number 16 in your maths textbook. Question is given 6x minus 4y is equal to -12. This is the equation 1. Then next one it's given 8x minus 3y is equal to -2. इक्वेशन बराबर से प्रॉपर फॉर्म में ही दिया है, नो नीड टू रीअरेंज दैम। सो हियर वी राइट 6 और 8 हो जाएगा, -4 हो जाएगा, -3 हो जाएगा, -12 हो जाएगा एंड -2 हो जाएगा। ये उसकी वैल्यू है। ये x वेरिएबल कैरी करता है, ये y वेरिएबल कैरी करता है। हमें पहले क्या फाइंड करना है, d फाइंड करना है। d के लिए हम लिखेंगे a1 a2 b1 b2, तो ये 1 होता है हमारा, तो हम लिखेंगे 6 and 8 -4 -3, क्रॉस मल्टीप्लाई 6 इंटू -3 -4 इंटू 8, -18 हो जाएगा, माइनस का साइन है, -32 हो जाएगा, -18 प्लस 32, 32 -18 क्या हो जाएगा, 12 में से 8 जाएगा तो 4 एंड यहाँ पे हो जाएगा 14, प्लस की साइन हो जाएगी, सो d हो जाएगा 14। dy फाइंड करेंगे। dy के लिए हमें y के एलिमेंट्स को सेपरेट करना है, तो c1 c2 हो जाएगा, y b1 b2 हो जाएगा, b1 एंड b2 हो जाएगा, c1 c2 b1 b2। dx है, सॉरी यहाँ पे हमारा dx है, तो x के वैल्यू एलिमेंट्स को एलिमिनेट करेंगे, तो यह हमारा हो जाएगा c1 c2 ले लेंगे और b1 b2 ले लेंगे, वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे, तो c1 c2 है हमारा -12 एंड -2, b1 b2 है -4 एंड -3, क्रॉस मल्टीप्लाई करना है,
-12 इंटू -3 और यहाँ पे माइनस का साइन हो जाएगा -4 इंटू -2। आगे हम देखेंगे 12 3 ज़ा 36 हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, माइनस का साइन यहाँ पे भी 4 2 ज़ा 8 हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाता है। 36 में से 8 जाएगा तो 8 हो जाएगा और 28। डी एक्स की वैल्यू 28 हो जाएगी। डी वाई फाइंड करेंगे। डी वाई इज इक्वल टू, यहाँ पे हम x को एलिमिनेट करना है तो a1 a2 ले लेंगे और b1 b2 को एलिमिनेट कर रहे हैं तो c1 और c2 लिख लेंगे। वैल्यू को सब्स्टिट्यूट करते हैं तो a1 a2 में है, यहाँ पे हमें 6 और 8 हो जाएगा और यहाँ पे -12 और -2 हो जाएगा। हम आगे सिंप्लीफाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, आगे हम सिंप्लीफाई कर रहे हैं तो हमारा आंसर हो जाएगा 6 मल्टीप्लाई बाय -2, माइनस का साइन हो जाएगा -12 इंटू 8। यहाँ पे 6 2 ज़ा 12 -12 हो जाएगा, -12 8 ज़ा 96 और 1 टाइम माइनस है तो माइनस की साइन हो जाएगी। यहाँ पे -12 हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस 96 हो जाएगा, माइनस प्लस माइनस साइन ऑफ ग्रेटर नंबर तो प्लस हो जाएगा। 6 में से 2 जाएगा तो 4 हो जाएगा और यहाँ पे 84 हो जाएगा। तो यहाँ पे हमारा डी वाई हो जाएगा 84। हमें x वेरिएबल की वैल्यू फाइंड करनी है। x इज इक्वल टू डी एक्स अपॉन डी हो जाता है। डिटर्मिनेंट्स डी एक्स है हमारा 28 और d की वैल्यू है 14 2 ज़ा 28 तो d 2 हो जाएगा। y वेरिएबल की वैल्यू फाइंड करनी है, dy अपॉन d हो जाएगा। dy है हमारा 84 और d है हमारा 14 6 ज़ा हो जाएगा, 14 6 ज़ा 84 हो जाता है तो ये कट हो जाएगा तो 6 आ जाएगा। देयरफॉर x एंड y वेरिएबल क्या हो जाएगा हमारा 2,6 हो जाएगा। दिस इज द आंसर। दिस इज द x एंड y वेरिएबल इज इक्वल टू 2 and 6। क्वेश्चन नंबर 4 वी हैव डन। नाउ इट्स अ 5th वन। फिफ्थ है 4m प्लस 6n इज इक्वल टू 54। ऑलरेडी ऑर्डर में दिया है, इसको तुम इक्वेशन 1 दे दोगे और नेक्स्ट इक्वेशन दिया है 3m प्लस 2n इज इक्वल टू 28। दिस इज द इक्वेशन 2। इसको तुम a1 b1 a1 a2 b1 b2 c1 c2 करके उसको सॉल्व करोगे। ये तुम्हारा होमवर्क क्वेश्चन है। होम असाइनमेंट में तुमको यही जैसे मैंने अभी बताया वैसे ही तुमको प्रैक्टिस करना है, चेक करना है आंसर कि पीछे राइट है कि नहीं है। अगर गलत आंसर आएगा तो मुझे मैसेज करके बता देना। लेट्स कम टू द 6th क्वेश्चन। थोड़ा सा अलग है। 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 2 इक्वेशन 1 है हमारा। ऑलरेडी ऑर्डर में दिया है a1 x प्लस b1 y इज इक्वल टू c1। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है x माइनस वाई अपॉन 2 इज इक्वल टू 1/2। ये क्वेश्चन दिया है। जनरली हमारे इक्वेशन जो है वो फ्रैक्शन में नहीं होते, यहाँ पे इक्वेशन फ्रैक्शन में है। तो व्हाट सी इन द डिनोमिनेटर्स प्लेस 2 इट्स गिवन, सो आई हैव टू एलिमिनेट दिस I have to eliminate the 2. To eliminate the 2, what I have to do? To eliminate the 2, I have to eliminate the 2. I have to multiply by 2 thoroughly. If I this equation, if I multiply by 2 thoroughly, what I get? Y upon 2 multiply by 2 is equal to 1/2 multiply by 2. See what I will get. Here it's become a 2x माइनस 2 कट हो जाएगा तो y हो जाएगा और यहाँ पे 2 कट हो जाएगा तो 1 हो जाएगा। तो
तो ये मेरा इक्वेशन हो जाएगा। यहाँ पे मैं इक्वेशन उसको नंबर 2 दे दूँगी। सी हमारा फर्स्ट इक्वेशन 2x + 3y 2x + 3y = 2. This is the equation 1. Next one is given 2x - y = 1. Here nothing it's given, so assume it's a कि ये हमारा 1 है। इसको इक्वेशन 2 दे दिया। कई बार उन्होंने क्वेश्चन दिया है तो उसमें क्वेश्चन में कुछ उन्होंने एक्स्ट्रा दे दिया है, तो हमें कुछ 1-2 स्टेप बिफोर करना है, तो ये नॉर्मल इक्वेशन आ जाता है। इससे हमें a1 b1 मिल जाएगा 2 2 + 3 -1 2 and 1। अगर ये नहीं भी लिखा तो भी चलता है, बट हमारी बेटर अंडरस्टैंडिंग के लिए हम ये लिख लेते हैं, ताकि हमारा कई बार हमारे क्वेश्चंस या नंबर्स देखने में मिस्टेक हो जाती है। तो यहाँ पे एक स्टेप में लिख दिया तो समझ में आ जाता है कि ये ए है, बी है, सी है। हम डिटर्मिनेंट्स की वैल्यू फाइंड करेंगे। डिटर्मिनेंट्स के लिए लिखेंगे a1 a2 b1 b2। ये लिखना है ताकि तुमको समझ में आए विच वैल्यू यू हैव टू टेक। सो हियर विल टेक 2/2 + 3 -1। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे 2 × -1 2 × -1 -3 × 2। 2 × -1 करेंगे -2 हो जाएगा, माइनस की साइन 3 2 6 -2 -6 -8 हो जाएगा। देयरफॉर डी वैल्यू इट्स द वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट्स = -8। dx फाइंड करना है। dx के लिए हम लिखेंगे c1 c2 b1 b2। c1 c2 की वैल्यू है हमारे पास 2 and 1, b1 b2 it's given 3 and -1। See, it's very easy once you know how to do. Just put the value and carried out multiplication, division, addition or subtraction, whatever it's required. 2 × -1 minus sign, 3 × 1, 2 × -1 it's -2, -3 1s are 3, -2 -3 it's a -5. So determinants x value it's -5. Now we find the determinants y. a1 a2 c1 c2. What is the a1 a2? a1 a2 it's given 2 2 c1 c2 2 and 1। क्रॉस मल्टीप्लाई हम डायरेक्टली भी कर सकते हैं। 2 1s are 2 -2 2s are 4 +2 -4 -2 हो जाएगा। डिटर्मिनेंट्स y = -2। x variable we have to find the x variable, so dx/d = what is the dx? it's हमारा -5 है, d है -8 है, माइनस माइनस प्लस हो जाता है, तो x की वेरिएबल हो जाएगी 5/8। y वैल्यूज y वेरिएबल हमको फाइंड करना है। सो dy/d, so dy it's -2 and d it's -8, minus plus 2 1s are 2 4 2s are 8, so 1/4. This is the value of y. Therefore x and y solution is 5/8, 1/4. Question sometimes the solution comes in the fraction, but हमारा वर्क है सिर्फ उसको सिंप्लीफाई करना, उसको फाइंड करना। अगर वो फ्रैक्शन में आ रहा है तो फ्रैक्शन में छोड़ दो। नेक्स्ट प्रैक्टिस सेट है हमारा 1.4 1.4x प्रैक्टिस सेट। ये लीनियर इक्वेशन विद 2 वेरिएबल। लीनियर इक्वेशन विद 2 वेरिएबल्स की 4th मेथड है। मैंने बताया था कि लीनियर इक्वेशन में हमारी 4 मेथड है। फर्स्ट वाली थी वो एलिमिनेशन मेथड थी, हम एलिमिनेट कर रहे थे, एलिमिनेशन मेथड थी। सेकंड वन हमने ग्राफ मेथड देखा। 1.3 में हमने क्रैमल्स रूल को देखा। अभी 4th वाला है वो रीसब्स्टिट्यूटिंग मेथड है। सब्स्टिट्यूट एंड रीसब्स्टिट्यूट मेथड है, जहाँ पे हमारा इक्वेशन 2 बार आएगा, 2 बार उसको सॉल्व करना रहेगा, क्योंकि जनरली हम सब्स्टिट्यूट करते हैं, इसको रीसब्स्टिट्यूट करना है। जब रीसब्स्टिट्यूट करेंगे
तो यहाँ पे हमारे आंसर 2 बार इक्वेशन को सॉल्व करना पड़ेगा, तब जाके आंसर आएगा। थोड़ा सा डिफ़िकल्ट लगेगा, लेंथी प्रोसेस है, बट बोर्ड के एग्ज़ाम में ये 3 अदरवाइज़ 4 मार्क्स के क्वेश्चन में पूछा जाता है। सो लेट्स स्टार्ट विद द प्रैक्टिस सेट 1.4 इन योर मैथ्स टेक्स्ट बुक, पेज नंबर 19। पेज नंबर 19, solution 1. It's given 2 upon x minus 3 upon y is equal to 15. Another one, it's 8 upon x plus 5 upon y is equal to 77. ये क्वेश्चन हमेशा फ्रैक्शन में ही रहता है। यहाँ पे हमें कुछ कॉमन देखना है। यहाँ पे देखो x और y डिनोमिनेटर्स में है, x और x यहाँ पे है, y और y है। इफ़ आई सेपरेट दिस, 2 को मैंने बाहर ले लिया, 2 को बाहर ले लिया और यहाँ पे लिखा 2, आई सेपरेट एंड राइट 1 अपॉन एक्स माइनस 3, आई कीप इट आउटसाइड एंड आई राइट 1 अपॉन वाई इज इक्वल टू 15. It's 1 and it's the same. I just separated this number with the fraction. Same with here I'll do. Here I separate the 8 and here I write 1 upon x प्लस 5 है, प्लस है तो प्लस लिखो, 5 है तो 5 लिखो, यहाँ पे फ्रैक्शन में 1 अपॉन y लिखो, यहाँ पे 77 लिखो। here I give the equation number 2. सी अभी ये क्वेश्चन में मुझे कुछ कॉमन दिखेगा। यहाँ पे देखो 1 अपॉन x है कॉमन, ये 1 अपॉन y है, बट इसकी वजह से हमारा इक्वेशन थोड़ा सा बड़ा दिखता है, थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड लगता है। तो लेट्स सब्स्टिट्यूट। हम पहले क्या करेंगे, सब्स्टिट्यूट करेंगे। 1 अपॉन एक्स इज इक्वल टू एम करेंगे, बिकॉज ऑलरेडी एक्स दिया है क्वेश्चन में, तो हम एक्स अज्यूम नहीं कर सकते, हम एक्स एम कर देंगे। एंड 1 अपॉन वाई है तो मैंने एम सब्स्टिट्यूट कर दिया। इंस्टेड ऑफ 1 अपॉन एक्स आई सब्स्टिट्यूट एम, इंस्टेड ऑफ 1 अपॉन वाई आई पुट द एन, सो दैट मेक माई इक्वेशन ईजी। तो 2 आई राइट 1 upon x is my m, so here I write m. Here minus sign is this, so I put a minus sign. 3 1 upon y means my n, so I put n is equal to 15. See, my equation gets changed, so I give the number 3. Here I write 8 m plus 5 n is equal to 77. New number I get, so I write equation number 4. Now we have to carry out the solution of this part by using the first 1.1 elimination method. देखो यहाँ पे n है, इसको मुझे एलिमिनेट करना है, बिकॉज यहाँ पे माइनस की साइन है, एडिशन की साइन है, पॉजिटिव साइन है। इफ़ दिस इक्वेशन, इफ आई मल्टीप्लाई बाय 5 एंड दिस इक्वेशन आई मल्टीप्लाई बाय 3, so I will get the equal value. The equation 3 multiply by 5, it will be a 15. Equation 4 multiply by 3, so I'll get 15 here. So minus 15 plus 15 eliminate. So what we have to write? Equation 3 multiply by 5 and equation 4 multiply by 3. और सिर्फ एक से ही नहीं करना रहता है, पूरा थ्रूली करना रहता है। अगर हम मल्टीप्लाई करते हैं तो सिर्फ एक टर्म से नहीं करते हैं, पूरा इक्वेशन की वैल्यू को वो नंबर से मल्टीप्लाई करके उसको इक्वली उसकी वैल्यू को इंक्रीज़ करना है। सो इफ़ आई मल्टीप्लाई बाय 5, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 5 2 10 m हो जाएगा, माइनस है तो माइनस 5 3 15 n और 15 5 हो जाएगा, 15 5 75. This is the again value gets increased, so I'll write a equation number 5. ये इक्वेशन को मुझे 3 से मल्टीप्लाई करना है। 8 3 24 m प्लस नंबर के नीचे ही नंबर लिखना, वो समझ में आ जाता है हमारा ऑब्जर्वेशन करने के लिए। 5 3 15 n इज इक्वल टू 77 3 7 3 21, 2 goes up 21 प्लस 2 23, सो 2 3 1 हो जाएगा, इक्वेशन 6 हो जाएगा। यहाँ पे फ्रॉम इक्वेशन देखो, यहाँ पे ऑलरेडी
नेगेटिव एंड पॉजिटिव साइन दिया है, तो हमको क्या करना है, ऐड करना है। ऐड इक्वेशन 5 एंड 6, हम इक्वेशन 5 और 6 को ऐड कर देंगे, क्योंकि यहाँ पे साइन चेंज करने की ज़रूरत नहीं है, ऑलरेडी उन्होंने अपोजिट दिया है। तो ये क्या हो जाएगा, हम इसको एलिमिनेट कर देंगे। -15n + 15n कट हो जाएगा, ऐड करना है, एडिशन का साइन कर देंगे। 10m + 24m 34m हो जाएगा, इज इक्वल टू 5 + 1 6 हो जाएगा, 0 हो जाएगा, 306। m इज इक्वल टू 306 डिवाइड बाई 3 4 34। देखो 34 है, 34 10 सा 340 हो जाता है। 34 4 है और 6 है, 4 9 सा 36 हो जाता है। तो 34 9 सा ही आ जाएगा, 34 9 सा हो जाएगा हमारा। 34 9 सा से मल्टीप्लाई करेंगे, 9 4 सा 36, 3 गोज कैरी, 27 + 3 30, 306 आ गया। ये हमारा वर्किंग पार्ट है, सिर्फ बताने के लिए मैंने यहाँ पे लिखा, अदरवाइज इट्स नॉट गुड रिप्रेजेंटेशन टू शो इट ऑन द राइट हैंड साइड ऑफ योर बुक। तो इसको कट करके m हो जाएगा, देयरफॉर m इज इक्वल टू 9 हो गया। m इज इक्वल टू 9 हो गया। आगे हम n की वैल्यू फाइंड करेंगे। हमारा m इज इक्वल टू 9 हो गया। हम इक्वेशन 3 में m की वैल्यू रखेंगे। सब्स्टिट्यूट m इज इक्वल टू 9 इन इक्वेशन, हम कोई भी इक्वेशन में लिख सकते हैं, हम इक्वेशन 5 में लिख लेते हैं। इक्वेशन 5 में m इज इक्वल टू 9 लिखेंगे तो हमें n की वैल्यू मिल जाएगी। इक्वेशन 5 इज 10m - 15n इज इक्वल टू 75 है। m इज इक्वल टू 9 है, तो यहाँ पे 10m इज इक्वल टू 9 लिखेंगे। 15n इज इक्वल टू 75, 10 9 सा 90 हो जाता है, -15n इज इक्वल टू 75, -15n इज इक्वल टू 75 + 90 है, यहाँ पे जाएगा तो -90 हो जाएगा। -15n इज इक्वल टू +75 है, -90 है, तो फिर प्लस माइनस साइन ऑफ ग्रेटर नंबर, तो -15 हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। n इज इक्वल टू 15 मल्टीप्लाई बाय 15 कम्स दिस साइड, बिकम अ डिवाइड बाय 15, 15 गेट्स कैंसल, इज इक्वल टू 1, सो एस n इज इक्वल टू 1। नाउ वी री सब्स्टिट्यूट, ये तो सब्स्टिट्यूट किया है, हमारा आंसर और करना है। नाउ री सब्स्टिट्यूट, जहाँ पे हमने m लिखा है उसकी जगह पे 1/x लिखना है, n इज इक्वल टू 1/y। तो m की वैल्यू क्या है, हमारा 9 है, x की वैल्यू क्या है, 1/x है, और यहाँ पे क्या है, n की वैल्यू 1 है, और यहाँ पे 1/y है। हमें x और y की वेरिएबल पता होनी चाहिए। हम क्या करेंगे, अपॉन 1 कर देंगे, ये फ्रैक्शन में दिया है, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, 9 × x 9x हो जाएगा, इज इक्वल टू 1 × 1 1 हो जाएगा। x इज इक्वल टू 1, दिस मल्टीप्लाई बाय 9 बिकम अ डिवाइड बाय 9, तो x की वैल्यू हो जाएगी 1/9। अगेन 1/1 क्रॉस मल्टीप्लाई, 1y इज इक्वल टू 1, y इज इक्वल टू 1, तो y की वैल्यू 1 हो गई। तो हमें फाइनली x और y वेरिएबल फाइंड करना है, देयरफॉर x एंड y वेरिएबल वैल्यू इट्स 1/9 और 1। सो दिस इज आवर सॉल्यूशन। आज के होम असाइनमेंट में आपको 5 सम दे रही हूँ जो कंप्लीट करना है, बेस्ड ऑन क्रैमल्स रूल के हिसाब से तुमको सम सॉल्व करने हैं। जो क्वेश्चन है हमारा वो है (6x - 3y इज इक्वल टू -10), इक्वेशन 1 हो जाएगा। 3x + 5y - 8
इज इक्वल टू 0, उसको तुम शिफ्ट करोगे, -8 को ये साइड पे शिफ्ट करोगे तो -1 हो जाएगा। ये क्वेश्चन नंबर 1 है। क्वेश्चन नंबर 2 है 4m माइनस 2n इज इक्वल टू -4, 4m प्लस 3n इज इक्वल टू 16। ऑलरेडी उन्होंने रिक्वायर्ड फॉर्म में दिया है, सिर्फ तुमको वैल्यू सब्स्टिट्यूट करके उसको सॉल्व करना है। थर्ड वन इट्स बिट डिफ़िकल्ट है, यू हैव टू यूज़ योर ब्रेन एंड सॉल्व दिस बाय smartly, otherwise multiply this equation by 2 thoroughly, so you will get the whole number. That will be the equation 1, and 1 upon 3x प्लस 3y इज इक्वल टू -4 अपॉन 3। यहाँ पे डिनोमिनेटर्स 3 कॉमन है, उसको एलिमिनेट करने के लिए मल्टीप्लाई बाय 3 करोगे। फोर्थ क्वेश्चन जो है वो हमारा रीसब्स्टिट्यूट मेथड से है। रीसब्स्टिट्यूट मेथड से तुमको सॉल्व करना है। इसको एक बार ट्राई करना, अगर नहीं समझ में आएगा तो आई विल शो यू द सॉल्यूशन इन माय नेक्स्ट क्लास। 10x प्लस वाई प्लस 2x माइनस वाई इज इक्वल टू 4। x प्लस वाई 1 अपॉन x प्लस वाई कॉमन हो जाएगा, वो उसकी वैल्यू m हो जाएगी। 1x माइनस वाई n हो जाएगा, इस तरह से उसको कॉमन ले लोगे। 15x प्लस वाई माइनस 5x माइनस वाई इज इक्वल टू -2, ये हमारा सेकेंड इक्वेशन हो जाएगा। यहाँ पे तुमको ये देखो कॉमन हो जाएगा, ये कॉमन हो जाएगा। 10 को साइड में ले लोगे, न्यूमरेटर्स को साइड में ले लोगे तो मिल जाएगा, प्रीवियस क्वेश्चन के जैसे ही है। और एक ये है क्वेश्चन एक्टिविटी बेस्ड है, थोड़ा स्मार्टली करना। 1y माइनस 2, यहाँ पे 1 अपॉन x माइनस 1 और यहाँ पे 1y माइनस 2 को कॉमन ले लोगे। देन नेक्स्ट इक्वेशन इज 6x माइनस 1 माइनस 3y माइनस 2 इज इक्वल टू 1। तो ये तुम्हारे 5 क्वेश्चंस है जो तुमको होम असाइनमेंट में करने हैं, और इसके आंसर्स मैं तुमको नेक्स्ट क्लास में बताऊंगी क्या है। अगर नहीं आ रहा है तो send me a message, I will show you the solution of these sums. That's it. Thank you everyone.